My dear student, today we are going to learn about current electricity. You are already you are already familiar with this chapter because you have studied this chapter in your 10th standard as well as in 11th standard. So already you are knowing about that which one is the very basic concept or very basic law hidden behind the concept of electricity, current electricity. Ohm's law. When I am talking about the Ohm's law is what beta? It is V is directly proportional to I. And you know that the entire concept of current electricity is hidden, entire concept of current electricity is stand on Ohm's law. V is directly proportional to I. Already you know about law of resistance. And what is that? The resistance in series. Resistance in series and resistance in parallel. So these are the three law which is related with the current electricity. Suppose if the resistances are connected in series, then you will use the formula Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. And if the resistances are connected in parallel, then you will use the formula 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 and dot like that. It means beta, if resistances they are connected in series, then we will use this formula, and if they are connected in parallel, then we will use this formula. But suppose, assume that if the complicated circuits are there, the resistances they are neither connected in series and nor connected in parallel, or we will not able to distinguish between whether it is connected in series or it is connected in parallel. So in that case, we will not able to apply the law of series and law of parallel. If the resistances they are connected in very complicated manner, we will not able to find out whether it is connected in series or it is connected in parallel, then we will not able to apply the law of series and law of parallel. Similarly, when I am talking about the Ohm's law, it is valid for the terminal potential difference. It is valid for the terminal potential difference. It means if the circuit containing one cell, then we will able to apply the Ohm's law easily, और Ohm's law से हमें बेटा पता चल जाता है उस सर्किट का जो भी potential difference, current and resistance find out हो जाता है. But if any circuit it contain large number of cell, n number of cell, and that cells they are connected in very complicated manner. So in that case, we will not able to apply the Ohm's law. It means in the entry level of 12th standard, we have to go for the certain law. We have to adopt the certain law. And there is a one scientist, the name of that scientist is Kirchhoff's. He made two law. And what is that? One law is Kirchhoff's current law and another one is a Kirchhoff's voltage law. And बेटा अगर आप ये दोनों लॉ किरचॉफ्स के दोनों लॉ अगर आप समझ गए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप you can able to understand the concept of current electricity easily if you know about Kirchhoff's 2's law. Now I am going to explain you about Kirchhoff's 2 law. See, what is the Kirchhoff's 2 law? So this is said to be as Kirchhoff's first law or current law or junction theorem. As the name suggested, Kirchhoff's first law, current law or junction theorem beta. In this case, we want one common point that is said to be as junction. See, what is a junction? What do you mean by junction? Junction is what? According to the mathematics, where two or more than 3 points meet at a one common point that is said to be as junction. जहां दो से ज्यादा लाइन आके एक पॉइंट पे मिल जाते हैं बेटा, उसे हम लोग जंक्शन कहते हैं. देखो जंक्शन क्या होता है. जंक्शन मतलब जैसे समझो बेटा चार रास्ता है, तो चार रास्ते का जो सेंट्रल पॉइंट होगा दैट इज सेड टू बी एज व्हाट जंक्शन. सो टू अप्लाई द Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, current law or junction theorem, we want one common point. So consider a diagram. In that diagram, 5 conductors are there. 5 conductors, they carry different current and meet at one common point, and that common point is said to be as junction.
So consider 5 different conductor carrying different current meet at one common point. That common point is said to be as junction. Assume that the current flowing through the first conductor, it is represented by I1. The current flowing through second conductor, it is represented by I2. And the current flowing through third conductor, it is represented by I3. While the current flowing through fourth conductor, it is represented by I4. While the current flowing through fifth conductor, it is represented by I5. This is the junction point. Now we can able to apply the Kirchhoff's first law, current law and junction theorem. देखो बेटा इसका statement क्या होगा? When I am talking about the statement of Kirchhoff's first law, current law or junction theorem, what is that? The statement, the algebraic sum of all the electric current, in an electric circuit at the junction is equal to 0, is always equal to 0. बेटा यहाँ पे word को ध्यान दो. Algebraic sum, when I am saying algebraic sum, it may be positive or it may be negative. It depend upon the direction of current. वो negative भी हो सकता है, वो positive भी हो सकता है. So statement इसका है, the algebraic sum of all the electric current at the junction in an electric circuit is always equal to 0. इसका मतलब क्या है बेटा? अगर इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में अप्लाई करूं, यहां जंक्शन पे जितने भी करंट मिल रहे हैं सबको सम कर दो और सबका आंसर कितना होगा? 0. तो अप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 is equal to 0. This is the algebraic sum of electric current at the junction in an electric circuit is always equal to 0. But beta, when you look at this diagram, in this diagram, what is that? In this diagram, when I am talking about this diagram beta, in this diagram, I1 is the current, some of the current they are flowing towards the junction, while the some of the current they are flowing away from the junction. It means we have to adopt the sum sign convention. अब मान लो मैंने किसी एक को पॉजिटिव लिया, ऑटोमेटिकली अनदर वन विल बिकम नेगेटिव. तो अज्यूम करो द करंट विच इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, जो अंदर की तरफ, टुवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, दैट शुड बी कंसीडर एज पॉजिटिव. while the current which is flowing away from the junction, that should be considered as a negative. So current flowing towards the junction should be taken as a positive, while the current flowing away from the junction should be taken as a negative. Now look at the diagram and apply the positive and negative in this equation. So now see I1 is flowing towards the junction, अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये positive रहेगा. It means this is right. I2 it is also flowing towards the junction, तो ये भी क्या रहेगा बेटा? Positive. तो that it will remain as it is. But when you look at I3, it is moving away from the junction. ये बाहर जा रहा है और away वाले के लिए हमें क्या लेना है? Negative. So here we have to put the minus sign. Look at I4 is positive. It remain as it is. And when I am talking about I5, it is moving away from the junction. ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की तरफ जा रहा है तो मतलब ये negative, right? अब ओपन करो ब्रैकेट. So I1 plus I2 minus I3 plus I4 plus minus I5 is equal to 0. Shift negative sign to that side. So what we will get? We will get I1 plus I2 plus I4 is equal to I3, I5 को उधर शिफ्ट कर दो. So I3 plus I5. So this is the another statement of what beta? Kirchhoff's first law, current law or junction theorem. This is the final equation. And when you look at the left hand side, अगर आप left hand side को देखोगे बेटा, तो ये क्या है? खाली वही करंट है जो अंदर की तरफ जा रहा है. I1 भी अंदर की तरफ जा रहा है, I2 भी अंदर की तरफ जा रहा है, I4 भी अंदर की तरफ जा रहा है. तो इसका मतलब क्या है? The sum of the current flowing towards the junction is equal to, and what is this? Away from the junction. तो हमें क्या मिलेगा बेटा? And this is the pure sum. It is not a algebraic sum. यहाँ खाली पॉजिटिव रहेगा, यहाँ कहीं नेगेटिव नहीं रहेगा. तो sum of the current flowing towards the junction is equal to the sum of the current flowing away from the junction. And this is the another statement of Kirchhoff's first law, current law and junction theorem. Got it beta? Now see, this is the end of this topic. Now I am going to explain you about MCQ related with this topic. MCQ related with this topic. First MCQ.
When you look at this equation, what is this beta? What it tell us? It tell us the sum of the current flowing towards the junction is equal to the sum of the current flowing away from the junction. And you know that current is what? It is the rate of flow of electric charge. Current is what beta? It is a rate of flow of electric charge. And suppose if I apply this in this, what we will get? In place of I1, we will get Q1 upon T. In place of I2, what we will get? Q2 upon T. In place of I4, Q4 upon T is equal to Q3 upon T. और लास्ट में क्या मिलेगा बेटा? Q5 अपॉन T. T T T T T गेट कैंसिल, सब गायब हो गए बेटा. तो यहां पे क्या मिल रहा है? Q1, Q2, Q4 ये अंदर की तरफ जाने वाले चार्जेस है. सो सम ऑफ द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स, सम ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. और शायद आपको याद होगा बेटा, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े हो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर. तो जो चार्ज अंदर जा रहा है वही चार्ज बाहर आ रहा है. तो मतलब फर्स्ट एमसीक्यू क्या है बेटा? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Law of conservation of electric charge. Second MCQ based on Kirchhoff's first law, current law and junction theorem. What is this beta? This is applicable for open as well as close. इसका मतलब है बेटा, चाहे ओपन सर्किट हो चाहे क्लोज सर्किट हो, हम लोग ये लॉ को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज Kirchhoff's सेकेंड लॉ, वोल्टेज लॉ और लूप थियरम. Kirchhoff's सेकेंड लॉ, वोल्टेज लॉ और लूप थियरम. बेटा इसका डायरेक्ट आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखो. मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0. समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0. See beta, here the summation, it is stand for the algebraic sum of. Summation stand for the algebraic sum of. E stand for EMF, and already you have studied about this EMF. The full form of this one is electromotive force. Electromotive force. In 11th standard you have studied about this. Electromotive force. The formula for this one is E is equal to W upon Q. E is equal to W upon Q. What is EMF? What is electromagnetic force? Electromotive force. Electromotive force or EMF is what? It is a work done or energy supplied by a cell to send a unit positive charge once around a complete circuit. And the SI unit of this one is volt. So this is about EMF, electromotive force. Here summation stand for the algebraic sum, E stand for EMF. Once again summation stand for algebraic sum, I stand for electric current, and R you know that resistance. I current and R resistance. Already आपको पता है. अब देखो बेटा इसका स्टेटमेंट क्या होगा? Summation stand for the algebraic sum of. So algebraic sum of EMF taken along the closed loop. बेटा ये ध्यान रखना, जैसे पहला वाला जो लॉ था वो ओपन एज वेल एज क्लोज दोनों सर्किट के लिए एप्लीकेबल था, बट मैं जब इसके बारे में बात करता हूं तो ये खाली क्लोज सर्किट के लिए एप्लीकेबल है. तो क्लोज, इसीलिए इसे हम लोग लूप थ्योरम भी कहते हैं. सो algebraic sum of EMF, summation stand for algebraic sum, E stand for EMF. So algebraic sum of EMF taken along a closed loop plus the algebraic sum of, this is what beta product na. So algebraic sum of product of current and resistance of each part of loop is equal to 0. This is the statement of Kirchhoff's second law, voltage law or loop theorem. When I am talking about the statement of Kirchhoff's second law, voltage law or loop theorem, it is very simple. But how to apply this law in any circuit diagram, that one is really very difficult. So listen carefully how you are going to apply Kirchhoff's second law, voltage law और loop theorem. But उसके पहले बेटा एक बार स्टेटमेंट फिर से देख लो
क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये स्टेटमेंट। फिर से देख लो, स्टेटमेंट क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ टेकन अलोंग अ क्लोज लूप प्लस द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ लूप इज इक्वल टू 0। So this is the statement of what beta, Kirchhoff's second law, voltage law और loop theorem। बट इसको अप्लाई करने से पहले मैं साइन कन्वेंशन बताता हूं बेटा। साइन कन्वेंशन रिलेटेड विद द KVL theorem। Why beta it is a KVL theorem? The shortcut name of this one is KVL, मतलब Kirchhoff's voltage law। और फर्स्ट लॉ का शॉर्टकट नेम क्या था, KCL, Kirchhoff's current law। अब बेटा इसके 4 साइन कन्वेंशन है, मैं बताता हूं क्या होगा, कैसे होगा। लिटरली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू अप्लाई दिस लॉ इन एनी पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। देखो होगा क्या, ये लोग हमें एक नेकेड सर्किट दे देंगे, नेकेड सर्किट। व्हेन आई एम सेइंग दिस इज द सर्किट, इट मींस समवेयर द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, somewhere the cells are connected and all the apparatus are connected, electrical equipments are connected। सो बेटा ये एक सर्किट डायग्राम है, नेकेड सर्किट डायग्राम हमें दे देंगे और बोलेंगे जाओ बेटा इसमें केवीएल अप्लाई करो। केवीएल कैसे अप्लाई करोगे, तो आप केवीएल कैसे अप्लाई करोगे जरा ये ध्यान देना। आपको क्या करना होगा, पहले इस सर्किट का नामकरण करना होगा और ये याद रखना जहां सेल होगा, जो लंबी लाइन होगी वो पॉजिटिव और जो छोटी होगी दैट वन इज नेगेटिव। एंड यू नो दैट द करंट फ्लो फ्रॉम वेयर टू वेयर बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमेशा करंट का डायरेक्शन बना देना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब नामकरण करो इसका ABCD और आप कैसे लिखोगे बेटा, अप्लाइंग, देखो ऐसे लिखोगे, अप्लाइंग KVL टू द लूप। कौन से लूप को अप्लाई कर रहे हो, ABCD। जब आप लिखोगे बेटा अप्लाइंग KVL टू द लूप ABCD, मतलब AB फिर BC फिर CD, यही है ना, बट D to A नहीं है, मतलब लूप क्लोज नहीं हुआ। तो ये हमेशा याद रखना बेटा, जिस लेटर से स्टार्ट करोगे उसी लेटर से आपको एंड करना है, तब आपका ये केवीएल का एप्लीकेशन बराबर होगा। अब इसका मतलब क्या है बेटा, हम लोग पहले ए से बी की तरफ आएंगे, ये ए से बी की तरफ आएंगे, फिर अगला स्टेप क्या है हमारा, हम लोग बी से सी की तरफ जाएंगे, फिर अगला स्टेप हमारा क्या है, सी टू डी की तरफ, और अगला स्टेप क्या है बेटा, डी टू ए। इसको हम लोग बोलते हैं पाथ। ये पाथ कौन सेलेक्ट कर रहा है, इट इज सेलेक्टेड बाय हुम, इट इज सेलेक्टेड बाय अस। तो पाथ हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अगर मन करता तो हम ए यहां से स्टार्ट करते, ए बी सी डी कर सकते थे। अगर हमारा मन करता तो ए यहां से स्टार्ट करके उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लेके जा सकते थे, ए बी सी डी। तो हमेशा याद रखना, द क्लोज कंडक्टिंग पाथ इट इज सेलेक्टेड बाय हुम बेटा, इट इज सेलेक्टेड बाय अस। तो पाथ हम लोग चुनेंगे हमेशा। और हमेशा याद रखना बेटा, ये पाथ चुनने के बाद अगर आपको रास्ते में ईएमएफ या रेजिस्टेंस दिखाई देगा, तभी आप केवीएल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। चलते चलते बेटा अगर आपको ईएमएफ और रेजिस्टेंस दिखाई दिया, तब आप केवीएल अप्लाई कर सकते हो। अब समझो पहली कंडीशन आ गई, ये रेजिस्टेंस है आर, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पार्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस से आई करंट फ्लो हो रहा है, और जो पाथ है बेटा, पाथ देखो, पाथ करंट की डायरेक्शन में है। और मैंने जैसे कि अभी आपको दिखाया, द क्लोज कंडक्टिंग पाथ इट इज सेलेक्टेड बाय हुम, इट इज सेलेक्टेड बाय अस। इसे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। क्लोज कंडक्टिंग पाथ को कौन सेलेक्ट करेगा बेटा, हम लोग। अब यहां पे इस डायग्राम में देखोगे तो करंट और पाथ दोनों एक ही डायरेक्शन में। ये मैं आपको साइन कन्वेंशन बता रहा हूं बेटा, रिलेटेड विद किरचॉफ्स केवीएल थ्योरम। अब क्लोज कंडक्टिंग पाथ और करंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, देन द प्रोडक्ट ऑफ आई आर विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये नेगेटिव माना जाएगा बेटा, समझे क्या इसको बोला जाता है। इफ द क्लोज कंडक्टिंग पाथ इट इज ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, देन द प्रोडक्ट ऑफ आई आर विल बी टेकन एज अ नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट। और यही अगर अपोजिट डायरेक्शन में पाथ होगा तो क्या होगा बेटा, जैसे करंट इधर जा रहा है, करंट यहां पे जा रहा है बेटा, और पाथ इस तरफ आ गया, इन दैट केस द प्रोडक्ट ऑफ आई आर विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव। ये ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, बराबर। और ये इन द डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मैं कैसे याद रखता हूं कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा, आपको क्या करना है बेटा, इन द डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में है तो इनमें पहला जो लेटर है इसको गोली मार दो,
गायब, बचा क्या, n स्टैंड फॉर व्हाट, नेगेटिव, सो प्रोडक्ट ऑफ IR विल बी नेगेटिव. सिमिलरली इन दिस वन, ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर से फर्स्ट लेटर को गोली मारो, बचा कौन बेटा, p फॉर व्हाट, पॉजिटिव, दैट इज व्हाई IR विल बी पॉजिटिव. जैसे कि मैंने आपको ये दो साइन कन्वेंशन है किससे रिलेटेड, रेजिस्टेंस. बट अब दो साइन कन्वेंशन किसके बचे हुए, EMF. अब EMF का साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे करेंगे, ये देखो EMF वाला साइन कन्वेंशन. बट ये हमेशा याद रखना बेटा, when the close conducting path it is stress in the direction of a current, then the product of IR will be taken as a negative. And close conducting path it is stress opposite direction of a current, opposite direction में जा रहा है, पहला लेटर मारो गोली, IR will be what, positive. अब सेल का केस देखो, जैसे ये सेल है बेटा, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, ये ई है. अब पाथ कौन सेलेक्ट करता है, हम लोग सेलेक्ट करते हैं. समझो पाथ इधर जा रहा है, तो इस केस में ई जो होगा ये नेगेटिव होगा, ई जो होगा बेटा ये नेगेटिव होगा. कैसे, मैं आपको बताता हूं, बस पहले याद रखो. फिर यहां पे बेटा सेम, सेल इधर है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट पाथ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, तो यहां पे ई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. अब देखो मैं आइडिया बताता हूं आपको, ट्रिक. बेटा इसमें ई नेगेटिव कैसे होगा, आप लोगों को पता है जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करता हूं, तो पॉजिटिव मतलब टॉप पोजीशन, एकदम टॉप पे हम लोग बैठते हैं, तो पॉजिटिव मतलब टॉप पोजीशन होता है, और नेगेटिव मतलब बॉटम पोजीशन. अब बेटा ये पाथ टॉप पोजीशन से नेगेटिव मतलब बॉटम पोजीशन पे जा रहा है, भाई एकदम बोलते हैं ना, टॉप पे बैठा था और जमीन पे गिरा दिए, तो इसका राइज हुआ कि फॉल हुआ, फॉल, तो देयरफॉर ई विल बी व्हाट, नेगेटिव. ऐसे ये वाला, यहां पे क्या है, जमीन पे बैठे हो और उठा के एकदम टॉप पे बिठा दिए, तो राइज हुआ कि फॉल, राइज, तो ई विल बी व्हाट, पॉजिटिव. सो दिस इज द साइन कन्वेंशन रिलेटेड विद विच थ्योरम, केवीएल थ्योरम. स्टेटमेंट एक बार फिर से देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF टेकन अलोंग अ क्लोज लूप, क्योंकि ये क्लोज सर्किट में ही एप्लीकेबल होता है, अभी मैं अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा. सो अलजेब्रिक सम ऑफ EMF टेकन अलोंग अ क्लोज लूप प्लस algebraic sum of product of current and resistance of each part of loop is equal to 0. Sign convention, if the close conducting path it is stress in the direction of current, then the IR will be taken as a negative. If the close conducting path it is stress opposite direction of a current, then the IR will be taken as a positive. In this case E will be negative and in this case E will be positive. अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ बेटा, एक एग्जांपल लेता हूँ. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं. ये या तो ऊपर वाली जो सर्किट है, ऊपर वाली सर्किट को ही हम लोग यूज करते हैं. देखो कैसे करेंगे, डस्टर. देखो बेटा ऊपर वाली सर्किट को हम लोग यूज करते हैं. अब ऊपर वाले सर्किट में क्या केस है, यहां पे मैं सेल दे देता हूं E, एंड दिस इज रेजिस्टेंस कैपिटल R एंड दिस इज रेजिस्टेंस स्मॉल r. अब आप लिख चुके हो, अप्लाइंग KVL टू द लूप ABCDA, ये हम लोगों ने लिख दिया है. और ये पाथ किसने सेलेक्ट किया, हम लोगों ने, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था. अब अगर मैं पाथ ये वाले कंसेप्ट को देखूं, तो पहले हम लोग A से B के बीच में जाएंगे. तो बेटा जब A से B पे जा रहे हैं, तो यहां पे कोई रेजिस्टेंस या EMF है, AB में नहीं है. देखो जब तक EMF या रेजिस्टेंस नहीं आए तब तक हम लोग ये लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते. मतलब A से B चलना हमारा व्यर्थ हो गया, छोड़ो, अफसोस ना करो, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बेटा, B to C. अब B to C में जाते हैं. जैसे ही B to C में जाओगे, सबसे पहले आपको कौन मिला, E. और सबसे पहले बेटा आपको मिला E, और E को अगर देखोगे तो पाथ हमारा इस तरफ जा रहा है, पाथ हमने सेलेक्ट किया था, हमारा पाथ इस तरफ जा रहा है बेटा. मतलब यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, टॉप से बॉटम, तो E विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, A विल बी नेगेटिव. मैंने अभी बताया था ना आपको यहां पे, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, -E, राइट. और अज्यूम करो सब में करंट एक ही कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, I, सेल एक ही है, करंट इसलिए चेंज नहीं होगा. अब जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, E से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, और रेजिस्टेंस या EMF है, तो हमें ये लॉ को यूज करना है. अब रेजिस्टेंस बैठा हुआ है बेटा, अब इस केस में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है. देखो इस केस में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और पाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है. And when current and close conducting path they are traced oppositely, opposite direction में जा रहे हैं, in that case the product of IR will be taken as a positive. तो यहाँ पे I into छोटा r, that will be become what बेटा, positive. Got it? तो B to C का काम हो गया.
अब B2C के बाद अगला कौन है बेटा, C2D, तो C2D चलोगे, कोई है तो मतलब ये भी बर्बाद हो गया, ये चलना हमारा बर्बाद हो गया। फिर अगला स्टेप क्या है बेटा हमारा, D2A। अब D2A में कौन बैठा है, कैपिटल R, बड़का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। अब बड़का रेजिस्टेंस का करंट का डायरेक्शन देखो बेटा, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एंड पाथ को देखो ऑपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट होगा तो प्रोडक्ट ऑफ आई आर क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पे इस केस में आप क्या लिखोगे, प्लस आई इंटू कैपिटल आर। हो गया सर अप्लाई क्लोज लूप, तो लास्ट में आपको डालना है इज इक्वल टू 0। गॉट इट बेटा। अब एक काम करो, माइनस को उधर भेज दो, सो ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू आर। इन दिस वे यू आर गोइंग टू अप्लाई द केवीएल थ्योरम टू एनी पर्टिकुलर सर्किट। केवीएल थ्योरम टू एनी पर्टिकुलर सर्किट। एक किसी पर्टिकुलर सर्किट को केवीएल थ्योरम इसी ऐसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया, दिस इज द एंड ऑफ केवीएल थ्योरम। न्यूमेरिकल्स हम आपको बाद में कराएंगे। अब देखो बेटा एमसीक्यू रिलेटेड विद दिस टॉपिक। एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू, अगर इसमें देखोगे बेटा ई एक साइड है और आई आर दूसरे साइड है, और ई क्या होता है मैंने आपको बताया, दिस इज नॉट अ फोर्स, as a name suggested, electromotive force, it is not any kind of a force, it is an energy supplied by a cell to move a unit positive charge once around a complete circuit। तो मतलब EMF मतलब क्या है बेटा, एनर्जी। और ये क्या है, IR मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, 10th और 11th स्टैंडर्ड पढ़े हो, ओम्स लॉ। सो IR मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस भी तो एनर्जी होती है। तो मतलब क्या है बेटा, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला वाला किस पे बेस्ड था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। गॉट इट बेटा। सेकंड एमसीक्यू रिलेटेड विद दिस वन। सेकंड एमसीक्यू रिलेटेड विद दिस वन, दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सर्किट। ये खाली क्लोज सर्किट के लिए एप्लीकेबल है बेटा। कहीं भी अगर सर्किट ओपन हुआ तो ये लॉ हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सर्किट, while when I am talking about the first one, that was applicable for both close as well as the open circuit। कर दीजिए। Now student, see numerical based on KCL, Kirchhoff's current law से numerical। ये सर्किट दिया गया है, ओपन सर्किट में भी एप्लीकेबल है KCL जैसे आप जानते हो, और इस सर्किट में I क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है बेटा, जंक्शन लो, और आपको पता है द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। अब स्टार्टिंग यहां से करो, देखो 1 एम्पियर और 2 एम्पियर अंदर जा रहा है, तो दोनों एड ऑन हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना एम्पियर हो जाएगा, 3 एम्पियर। अब बेटा ये 3 एम्पियर अंदर गया, फिर एक जंक्शन, तो 3 एम्पियर से एक बाहर चला गया, तो 3 एम्पियर से एक कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, क्योंकि ये दोनों का ऐड करके इसके इक्वल होना चाहिए, बराबर। फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, ये 2 एम्पियर है और ये 5 एम्पियर, फिर से जंक्शन, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 एम्पियर। फिर यहाँ आओ बेटा जंक्शन, बट यहाँ पे ये दोनों अंदर आ रहे हैं, तो ये दोनों ऐड होंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। अब ये भी अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, और दोनों का एडिशन इज इक्वल टू बाहर, तो यहाँ पे कितना होगा, 10 एम्पियर। और 10 एम्पियर में से 7 एम्पियर बाहर जा रहा है, 10 एम्पियर में से 7 एम्पियर बाहर जा रहा है बेटा, एक मिनट। सो वेट, 10 आउट ऑफ दिस 10 एम्पियर 7 एम्पियर इज मूविंग आउटवर्ड, तो यहाँ पे कितना एम्पियर बचा, 10 माइनस 7 करोगे, तो सो आंसर ऑफ दिस वन विल बी हाउ मच एम्पियर, 3 एम्पियर। बेटा अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटेड विद द केवीएल, केवीएल से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब देखो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ केवीएल से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है बेटा, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज 0.5 एम्पियर इफ इट इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ अ सेल। ऐसी नॉर्मल एक थियोरी क्वेश्चन दिया है, ये क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है, amount of current is 0.5 ampere when it is connected to the terminal of a cell। सेल है तो सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा छोटा r, तो मतलब ये हो गया बेटा, और ये सर्किट कंप्लीट। लिटरली थियरी क्वेश्चन ऐसे ही देंगे बेटा, आपको सर्किट डायग्राम नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन में ये दिया गया है
the current flowing through external resistance of 2 ohm is 0.5 ampere when it is connected to the terminal of a cell. अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बट आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताता हूं. अभी देखो इसमें करना क्या है, पहले इसको सॉल्व करो. इसे पॉजिटिव जो बड़ा वाला है, दिस विल बी नेगेटिव. करंट का डायरेक्शन दो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक ही सेल है तो करंट वही रहेगा 0.5 एम्पियर. 0.5 एम्पियर यहाँ भी बेटा 0.5 एम्पियर, एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ भी हमारा 0.5 एम्पियर रहेगा. केवीएल अप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, नाम देंगे बेटा, नेमिंग करेंगे. तो नेमिंग करो ए बी सी डी. अब अप्लाई करो केवीएल जैसे बताया गया था आपको, तो आप लिखोगे अप्लाई केवीएल टू द लूप ए बी सी डी ए. अब केवीएल अप्लाई करोगे. अब हमने इसको ऐसे लिख दिया तो मतलब हमारा पाथ पहले कैसे होगा, ए टू बी. और ये हैबिट बनाओ, ये डायग्राम गायब करना है आपको, बार बार बनाना नहीं है. तो पहला हमारा पाथ कहां से कहां होगा, ए टू बी. अगला यहाँ पे कुछ है बेटा, ईएमएफ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नहीं है, तो मतलब ये हमारा ऐसे ही छोड़ देना है. अब हम अगला हमारा स्टेप क्या होगा, कहां से कहां मूव करना है, बी टू सी. जैसे ही आप बी टू सी मूव करोगे, सबसे पहले कौन मिला, सेल. और सेल की कंडीशन पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, टॉप से डाउन. तो यहां पे क्या आएगा बेटा, माइनस ई. अब जैसे ही आगे जाओगे तो देखो बेटा, ये पाथ इधर है और ये रेजिस्टेंस मिल गया. रेजिस्टेंस मिला तो हमें अप्लाई करना है. तो यहां पे इस केस में क्या हो रहा है बेटा, करंट इस तरफ जा रहा है और पाथ इस तरफ. बोथ ऑफ देम आर मूविंग अपोजिट, सो प्रोडक्ट ऑफ आई आर विल बी पॉजिटिव. तो यहां आई क्या है, 0.5, आर क्या है, छोटा आर. तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और पॉजिटिव में लिखो 0.5 आर. तो ये स्टेप बी टू सी हो गया. अब इसके बाद अगले स्टेप में कहां से जाओगे बेटा, सी टू डी. यहां पे रेजिस्टेंस या सेल है, नहीं है, तो इसे हमें छोड़ देना है. लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा बेटा, डी टू ए. यहां पे कौन है बेटा, रेजिस्टेंस है. अब इसका करंट का डायरेक्शन देखो और पाथ देखो ऑपोजिट. सो यू नो दैट प्रोडक्ट ऑफ आई आर विल बी व्हाट बेटा, पॉजिटिव. तो यहां पे 0.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1. तो मतलब आई आर जो होगा ये प्लस होगा और इनका आंसर 1 होगा. 1 इज इक्वल टू 0. ये पहला सर्किट डायग्राम के हिसाब से हो गया. अब ई को उधर भेज दो. सो 0.5 आर प्लस 1 इज इक्वल टू ई, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. गॉट इट. पहला क्वेश्चन में क्या दिया था, द current of 0.5 ampere is flowing through the 2 ohm resistance when it is connected to the terminal of a cell. अब बेटा इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट हाफ पार्ट में क्या दिया है देखो, और खाली ऐसी थियरी क्वेश्चन दिया है. पहले एक सर्किट बनाओ, उसका इक्वेशन बनाओ. अब दूसरा सर्किट क्या दिया हुआ है देखो बेटा, द करंट reduces to 0.25 ampere when the external resistance is 5 ohm. अब बोल रहे बेटा जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम हो, आपको पता है जितना रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट उतना क्या होगा, कम. तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम है तो इसका करंट कितना हो जाएगा बेटा, 0.25 एम्पियर. यहाँ पे करंट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 0.25 एम्पियर. और व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सेम सेल, सेल नहीं चेंज किया है क्वेश्चन में, सेम सेल. और बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर भी वही सेम सेल है तो वही रहेगा, ई पॉजिटिव नेगेटिव. ये सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है. और इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. इस टॉपिक में हमें ये फाइंड आउट करना है. अब बेटा एक सर्किट डायग्राम और मिल गया, इसमें भी नामकरण करो. एबीसीडी लिया है ऑलरेडी, तो मैं ले लेता हूं पी क्यू आर एस. करंट का डायरेक्शन सेट करो. सेल एक ही है, सेम मैनर में करंट एक ही होगा, तो करंट कौन सा होगा बेटा, 0.25 एम्पियर. यहां भी 0.25 एम्पियर. अब यहां पे अप्लाई करो केवीएल. केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, पहले तो आप लिखोगे अप्लाइंग केवीएल टू द लूप. अब यहां बेटा लूप क्या है, पी क्यू आर एस और लास्ट में पी. तो यहां लिखोगे बेटा पी क्यू आर एस पी. गॉट इट. और सबसे पहले कहां से कहां जाओगे, P2Q. यहां पे कुछ है बेटा, नहीं है, तो इसे क्या करोगे, छोड़ दोगे. अगला स्टेप कहां से कहां जाओगे, Q2R. यहां कौन है बेटा, सेल. अब यहां देखो सेल यहां पे दिख रहा है ना बेटा,
तो सेल पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यहां आप लिखोगे माइनस ई, साइन कन्वेंशन केवीएल थ्योरम से। फिर जैसे ही आगे जाओगे बेटा, जैसे ही आगे जाओगे आर मिला और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्रोडक्ट ऑफ आई आर विल बी व्हाट, पॉजिटिव, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो यहां आ जाएगा प्लस 0.25 आर, मिल गया आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप कहां से कहां जाओगे बेटा, R2S, नथिंग इज देयर, तो लीव इट। फिर यहां पे आओगे, रेजिस्टेंस है, करंट और पाथ कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 5 125, डेसिमल 2 डिजिट मतलब 1.25 हो जाएगा, तो प्लस है तो यहां लिखोगे 1.25 इज इक्वल टू 0। ई को उठा के उस तरफ शिफ्ट कर दो, सो व्हाट यू विल गेट 0.25 आर प्लस 1.25 इज इक्वल टू ई, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाया था उसको यहां पे लेके आते हैं, तो 0.5 आर प्लस 1 इज इक्वल टू ई। बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा ही दिख रहा है, देखो नॉर्मल, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ई कट जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा 0। अब बेटा ये 0.5 मतलब 50 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 0.25, और यहाँ का r, और 1 में से 1.25 में से 1 करोगे तो क्या होगा बेटा 1.25, बट साइन ग्रेटर का होता है, तो ग्रेटर ये है तो ये राइट है, और यहाँ पे साइन ग्रेटर का मतलब नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ बेटा सॉरी 0.25 आएगा, नेगेटिव को उधर शिफ्ट कर दो, सो 0.25 r is equal to 0.25, this get cancel, so r is equal to 1 ohm, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस आने के बाद कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो क्या होगा 0.5 इंटू आर कितना है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ई, मतलब क्या हो गया E is equal to 1.5 volt. So this is the numerical based on whom beta KVL theorem. Numerical based on KVL theorem. And in next lecture, I am going to explain you about the numerical based on mixture of KCL as well as the KVL theorem. That's it. Thank you.